اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 4 دسمبر ہے اور جمعۃ المبارک کا روز ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن ILO کے مطابق ورکرز کی اجرت سے متعلق عالمی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پرتگال کے بعد اسپین یورپی یونین کا دوسرا ملک ہے جس کے ورکرز کی اجرت یا تنخواہوں پر کرونا کا سب سے زیادہ اثر ہوا ہے۔ کاتالان حکام کا 7 دسمبر کو کرونا پابندیوں کی نرمی کا پہلا فیز ختم نہ کرنے کا فیصلہ، پہلے فیز کی مدت میں مزید 15 روز کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وبا کی موجودہ صورتحال اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ فیز 1 سے دوسرے فیز میں جایا جائے جس میں مزید نرمیاں ہونا تھی۔ کاتالان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کاتالونیا مزید 15 دن تک فیز 1 میں رہے گا اور اب فیز 1 21 دسمبر کو ختم ہوگا۔ بارز اور ریسٹورنٹ 30% گنجائش کے ساتھ گاہکوں کو اندر بٹھا سکیں گی۔ کاتالونیا میں فیز 1 میں 15 دن کی توسیع سے شاپنگ مال بھی نہیں کھل سکیں گے اور 21 دسمبر تک بند رہیں گے۔ شاپنگ مال کی بندش سے 800 میٹر سے زیادہ بڑی دکانیں بھی بند رہیں گی۔ بڑے سٹورز اور مالکان اور ملازمین نے اس صورتحال پر احتجاج کیا ہے اور کہا کہ ہم پہلے ہی بلیک فرائیڈے سے محروم ہو چکے ہیں اور اب کرسمس کا سیزن بھی مارا جائے گا۔ بارسلونا کا سابق کھلاڑی کرونا میں ٹیکسی ڈرائیور کو لوٹنے کے الزام میں گرفتار ہو گیا۔ بارسا ہینڈ بال ٹیم کا سابق کھلاڑی پاؤ پیارا نے چاقو سے ٹیکسی ڈرائیور کو ڈرایا اور جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ ٹیکسی ڈرائیور کے مطابق اس نے کھلاڑی پاؤ کو ہوٹل سے لیا اور ایک بینک کی ATM مشین پر لے گیا جہاں کھلاڑی نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ 2000 یورو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے ورنہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ جب ٹیکسی ڈرائیور نے انکار کیا تو پاؤ نے ٹیکسی کی چابی اور اس کا بینک کارڈ چرا لیا اور اس سے اس کا سیکرٹ پن مانگنا شروع کر دیا، مگر ناکامی پر پاؤ نے 300 یورو چھین لیے۔ بعد ازاں پولیس نے ہینڈ بال کے کھلاڑی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس موسس دے اسکواڈرا نے بغیر پیپر کے کام کے دوران ایک امیگرینٹ کی ہلاکت کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو سان آندریو دل بارکا میں انڈسٹریل گودام کی چھت کی مرمت کے دوران گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ ہلاک ہونے والا مزدور روس کا شہری تھا۔ یہ ورکر بغیر کانٹریکٹ اور کسی حفاظتی انتظام کے گودام کی چھت کے مرمت کا کام کر رہا تھا۔ یورپی ریکوری فنڈ کے لیے پولینڈ اور ہنگری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، یہ مطالبہ اسپین کی وزیر خارجہ نے کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسپین کی وزیر خارجہ آرنچا لائیا نے کہا ہے کہ یورپی ریکوری فنڈ کے سلسلے میں پولینڈ اور ہنگری جیسے ممالک کو اب تک کے مقابلے میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریکوری فنڈ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے ان ممالک کو اس فنڈ سے متعلق معاہدے کے طے پا جانے کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ لائیا نے کہا کہ پولینڈ اور ہنگری کی حکومتوں پر اپنے شہریوں اور کاروباری کے اداروں کے حوالے سے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جنہیں کرونا ریکوری فنڈ کے تحت مالی وسائل کی شدید ضرورت ہے۔ یہ فنڈ یورپی یونین نے یورپی ممالک کے لیے منظور کیا تھا اور ہنگری اور پولینڈ نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کو ویٹو کر دیں گے۔ میڈرڈ میں نابالغ امیگرینٹس کے مرکز میں نشے میں دھت ہو کر غل غپاڑہ کرنے والے 2 نابالغ لڑکوں نے 4 پولیس اہلکاروں کو معمولی زخمی کر دیا۔ کمسن امیگرینٹس بغیر دستاویزات کے ہیں اور اسپین میں نابالغوں کے سینٹر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے نشے میں دھت ہو کر اونچی آواز میں میوزک لگا دیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ سینٹر کے اہلکاروں نے پولیس کو مطلع کیا اور انہیں پولیس پر اشیاء پھینکنا شروع کر دی اور ان کو معمولی زخمی کر دیا۔ پولیس نے 2 نابالغ امیگرینٹس کو گرفتار کر لیا ہے۔ شہری ہوا بازی سے متعلق یورپی یونین کے ادارے یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی ایاسا نے PIA سمیت
तमाम पाकिस्तानी तैयारों की बरतानिया और यूरोप में परवाज़ों पर पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया है। EU कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान एविएशन पायलट लाइसेंस के तरीक़ेकार को शफाफ बनाए। पाकिस्तान में पायलट लाइसेंस इजरा को फूल प्रूफ बनाना होगा। EU कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी मुतमईन नहीं कर सकी, इसे सेफ्टी इकदाम मज़ीद बेहतर बनाना होंगे। ख्याल रहे कि पायलट्स के मशकूक या जाली लाइसेंस का मामला का आगाज़ 24 जून को हुआ था, जब कौमी असम्बली में कराची मुसाफिर तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करते हुए एक नादान वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा था कि 860 पायलट्स में से 262 ऐसे पाए गए हैं जिनकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया था। बाद अज़ां बाज़ पायलट्स ने अपने आप को क्लियर करवा लिया था और हुकूमत पाकिस्तान को दुनिया भर में सुबकी उठाना पड़ी थी। फ्रांसीसी हुक्काम ने इस्लामी इंतहा पसंदी से मुमकिना रवाबत की बुनियाद पर दर्जनों मसाजिद और इबादत के लिए मुख्तस हाल्स का मुआयना शुरू करने का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला जेराल्ड ने इस क्रैकडाउन का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर मसाजिद अलहद की पसंदी या इंतहा पसंदी की हौसला अफजाई करती पाई गई तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इंतहा पसंदी से निपटने के लिए एक कानून मुतारिफ करवाए जाने के एक हफ्ते बाद किया जा रहा है। ये अक्टूबर में होने वाले हमलों के रद्द अमल के तौर पर किया गया है, जिसका इल्ज़ाम इस्लामी इंतहा पसंदों को दिया जाता है। इन वाक़यात में टीचर सैमुअल पेटी का सर कलम किए जाने का बहीमाना वाक़या भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के ब्रेक्जिट अमूर से मुतल्लिक आला तरीन मुज़ाकराती नुमाइंदे फ़रीक़ैन के मुताबिक तजारती शोबे में जारी बातचीत में पेश रफ्त का इम्कान है। इस बात की यूरोपीय यूनियन के तीन आला सफारतकारों ने तस्दीक कर दी है। यह जायज़ा यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिशेल बार्नियर और बरतानिया की तरफ से डेविड फ्रोस्ट की सतह पर लिया जाएगा। इम्कान है कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन के माबैन एक हतमी तजारती माहिदा आइंदा वीकेंड पर तय पा सकता है। माहिरीन ने कहा है कि ब्रेक्जिट मुज़ाकरात के लिए अगले 48 घंटे फैसला कुन होंगे। जर्मनी में कोरोना वायरस की वबा को फैलाव को रोकने के लिए जुज़वी लॉकडाउन में 10 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। ये बात चांसलर एंगेला मेर्केल ने तमाम 16 सूबों के सरबराहान हुकूमत के साथ एक ऑनलाइन मुशावरती इजलास के बाद कही है। अब तक के हुकूमती फैसलों के मुताबिक मौजूदा लॉकडाउन की मुद्दत 20 दिसंबर को पूरा होनी थी। एंगेला मेर्केल ने कहा है कि जर्मनी अब तक उन अहदाफ से बहुत दूर है जो इसने अपने लिए इस वबा की रोकथाम के लिए तय कर रखे हैं। 10 जनवरी के बाद कुछ अर्सा के बाद ये लॉकडाउन जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला 4 जनवरी को होने वाले एक हुकूमती इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं वबा की दूसरी लहर से तिब्बी रजाकार पेशावर अफराद भी तेज़ी से मुतासर हो रहे हैं। दूसरी लहर के दौरान महज 5 दिनों में मुल्क भर में 10 डॉक्टर्स कोरोना वायरस की 22 जिंदगी खो बैठे, जबकि 3000 से ज़्यादा तिब्बी रजाकारों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक कोरोना से जाँ बहक होने वाले 10 में से 6 डॉक्टर महज एक ही रोज़ में 29 नवंबर को कराची, लाहौर और मुल्तान में चल बसे थे। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने नेशनल हेल्थ सर्विस के तमाम हेल्थ और कैरियर वर्कर्स को कोरोना वबा के दौरान शानदार खिदमत अंजाम देने पर 500 पाउंड बोनस देने का ऐलान किया है। 3 लाख अफराद, जिनमें फुल टाइम और पार्ट टाइम मुलाजमीन, डॉक्टर और नर्सें और पोर्टर शामिल हैं, उनको क्रिसमस से पहले ये बोनस शुक्रिया के टोकन के तौर पर दिया जा रहा है। अमरीकी अदालत की मुकर्रर करदा कमेटी को अब तक उन 628 बच्चों के वालिदैन की तलाश है जो ट्रंप इंतजामिया के हवाले मुद्दत में सरहद पर अपने वालिदैन से अलग कर दिए गए थे। अदालत में बुध के रोज़ दायर करदा एक दस्तावेज़ में कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने तलाश में मदद के लिए अज़ाफ़ी फ़ोन नंबर फराहम किए हैं। कहा जा रहा है कि 333 बच्चों के वालिदैन अमरीका में हैं और 295 बच्चों के वालिदैन अमरीका से बाहर हैं। ताहम कमेटी 628 में से 168 बच्चों के दीगर अहल खाना तक तो पहुँच गई है, लेकिन अभी तक इनके वालिदैन को तलाश नहीं कर सकी है। सऊदी वज़ारत तालीम ने मुमलिकत में गैर मुल्की को हदायत की है कि वो अपने बच्चों के फिंगरप्रिंट्स जवाज़ात महकमा पासपोर्ट्स के सिस्टम में फीड करवाएं। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ारत तालीम की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की जिनके बच्चे 6 वर्ष या इससे ज़ायद के हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर जवाज़ात के सिस्टम में बच्चों के फिंगरप्रिंट जमा करवाएं।
हुक्काम के मुताबिक फिंगरप्रिंट के लिए बच्चों का अकामा और पासपोर्ट दरकार होता है। इस ज़माने में जवाज़ात ने बच्चों के फिंगरप्रिंट्स के लिए कम से कम उम्र की हद 6 साल रखी है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 750 गोल स्कोर कर लिए। रोनाल्डो ने ये संगे मील बुध को इटली के शहर टोरोन में खेले गए चैंपियंस लीग के एक मैच में यूवेंटस की जानिब से खेलते हुए अबूर किया। इस मैच में यूवेंटस ने हरीफ टीम को 3 के मुकाबले में 0 से शिकस्त दी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये गोल इस लिहाज से भी यादगार करार दिया जा रहा है क्योंकि पहली बार चैंपियंस लीग के इस मैच में खातून भी रेफरी ने अपना डेब्यू किया था। अपने शानदार कैरियर में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड की जानिब से खेलते हुए 450 गोल स्कोर किए थे। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड हुक्काम ने ट्रेनिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आइसोलेशन में है और इसकी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी उसको ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं होगी। जनूबी अफ्रीका की टीम के एक खिलाड़ी के कोरोना वायरस के शिकार होने के बाद इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दौरान पहले वनडे मैच को टॉस से महज 1 घंटा कबल मुलतवी कर दिया गया। कोरोना टेस्ट मंफी आने के बावजूद सुहेल तनवीर की वतन वापसी 19 नवंबर को लाहौर से चार्टर तैयारे के जरिए कोलंबो पहुंचने वाले सुहेल तनवीर का श्रीलंका में कोरोना मस्बत टेस्ट आ गया, जिसके बाद उन्हें जारी लंका प्रीमियर लीग से कबल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। सुहेल तनवीर ने बताया कि उन्हें हैरानगी है कि ना उन्हें किसी किस्म की अलामात का सामना करना पड़ा और ना ही बुखार हुआ, ये फिर उनका कोरोना टेस्ट कैसे मस्बत आ गया। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की खबरें कि जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा। यहाँ पर मैं एक शुक्रिया अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ आप लोगों का अदा करना। वो इस हवाले से है कि मेरे बेटे की जो तबीयत ख़राब है उसके दौरान आप लोगों ने जो है वो बहुत ही जिम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा किया और मेरी हिम्मत बंधाई और मुझे किसी तौर पर भी जो है वो महसूस नहीं होने दिया कि मैं आप लोगों के बगैर हूँ। बहुत से दोस्त जो है वो कमेंट्स के अंदर बाज़ों ने फ़ोन के ज़रिए से, बाज़ों ने मैसेजेस के ज़रिए से मेरे बेटे की तबीयत मालूम की। कल उसकी सर्जरी हो चुकी है और माशाल्लाह कामयाब सर्जरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिएगा कि ये उसकी आखिरी सर्जरी हो और वो सेहतमंद होकर अपने घर को वापस लौटे, जो अभी तक जो है जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के बर्न यूनिट में दाखिल है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये शुक्रिया आपका अदा करना मेरे ऊपर वाजिब था जो मैंने आपका किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता आजिला अता फरमाए और जो लोग भी अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं उन्हें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखना और उनका खात्मा आखिरत के ऊपर ईमान के ऊपर करना। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।